So today we are going to discuss the 16th chapter. The name of the chapter is The Divine and Demoniac Nature. So in this chapter, Krishna is explaining the divine qualities, which are divine qualities, and which are Krishna has given a long list of demoniac qualities. So we'll see all those qualities, how a demoniac person thinks, and what are the qualities of a divine person. And Krishna says there are only these two qualities, these two kinds of persons. One is demoniac, another is divine. So या तो demoniac person होगा या तो divine होगा, कोई तीसरा category है ही नहीं. So we'll see this in this chapter. Very nice, interesting chapter. So we'll start with prayers. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कथांचन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री कृष्ण बलराम की जय श्री निताई गौरांग की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला प्रभुपाद की जय श्रीमद् भगवद गीता की जय निताई गौर प्रेमनंदे हरे कृष्णा So let us discuss the 16th chapter. So I'm going to share the screen here. Bhagavad Gita chapter 16, the divine and demoniac nature. दैवासुर संपद योग संस्कृत में बोलते हैं. So chapter summary. Transcendental nature and demoniac qualities 1 to 6 बताया है कृष्णा ने. वर्स नंबर 1 to वर्स नंबर 6. डिमोनियक नेचर के बारे में बताया है फ्रॉम वर्स नंबर 7 to 20. And then Krishna has given the choice whether you want to go to hell by becoming demoniac or you want to perfect your life by becoming divine. That is from verse number 21 to 24. So you will see in all the chapters, Krishna very systematically has presented the truth. First, he will describe about what he is going to speak, the glory. Then he will give the understanding. Then he'll conclude also. So very systematically, very nicely, Krishna has given this Bhagavad Gita instructions. So the first verse, opening verse, divine qualities. And a person who is in the mode of goodness, he only possesses divine qualities. Those who are in mode of passion and ignorance, they have demoniac qualities. We have already discussed these three gunas, three modes, Sattvagun, Rajogun and Tamogun. And we also discussed that because these three modes are interdependent, so we should try that the mode of goodness, the wheel of mode of goodness is bigger. And the wheel of mode of goodness is actually rotating other two wheels. It should not happen that Rajoguna and Tamoguna has overpowered us and the wheels of Rajoguna or Tamoguna is bigger. They are making us to rotate in the way they want. That should not happen.
As we discussed in the 14th chapter, Krishna says, Nanyam gunebhya kartaram yada drishtanupasyati gunebhyascha param veti mad bhavam sodhigacchati. Krishna is saying, Yad nanyam gunebhya kartaram. In this world, everything is performed by three modes. There is nothing beyond three modes. Na anyam, कोई है ही नहीं. गुणेभ्य कर्तारम, गुण सब कुछ गुणों द्वारा हो रहा है. थ्री मोड्स के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है. Apart from three modes, there is nothing. Just like in a theater, apart from three colors, there is nothing. Right? In the same way, in this world, all the activities are being performed by three modes. Krishna says, this is not me saying, this is Krishna saying. Na anyam gunebhya kartaram. कोई और ना अन्य, कुछ है ही नहीं दूसरे अलावा, गुणों के अलावा कुछ है ही नहीं जो कि कर रहा है. और फिर कृष्णा बोले, नान्यम गुणे पे कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति. अगर आप ऐसा देख रहे हैं, so you are freed from three modes. If you see that three modes are alone active and nothing is there, only three modes are there. If someone is becoming angry upon you, it is because of three modes. If someone is having very good feeling, good reciprocation with you, so that is because of good modes. आप टीचर के पास जाते हैं मिलने के लिए, कभी टीचर तो बहुत अच्छे से बात करता है, कभी ब्लास्ट करता है. Why all these things are? Why different natures? This is only because of different modes of nature. Mode of goodness, if he overpowers, then he will be very jolly, very happy. He will talk with you very nicely. But if he is in mode of passion or ignorance, if you go, then he will blast. So therefore we say no. यार उसका जब मूड अच्छा हो ना तब जाना उससे मिलने के लिए, कोई काम जब पड़ता है. So why this is all? Why mood is swinging? This is all influence of three modes and nothing else. So Krishna is saying. फिर Krishna third line क्या बोल रहे हैं? मद भावम सोधि गच्छति नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति. कृष्णा बोल रहे हैं और मैं जो है इन तीनों गुणों से परे बियॉन्ड हूँ. So सारी living entities, they are all under three modes. Krishna is beyond three modes. So never ever bring Krishna under the three modes and equalize with you. Krishna, never. Krishna is Param, supreme, and we are under three modes. So we can never compare Krishna, we can never compete with Krishna. So again I will speak that verse which is said in Upanishad, that it is said, na tat sama chadikasya drishyate स्वभाविकी ज्ञान बल क्रिया च पराश शक्तिर विविधैव श्रूयते न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्सम च अधिकस्य दृश्यते. कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ के न तो बराबर है न कोई से बड़ा है. और वो एब्सोल्यूट ट्रुथ जो कृष्णा है, ही सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ. Nobody is equal to Krishna, nobody is greater than Krishna. So all the demigods, which when we hear from rascals, bogus people, don't have any understanding, they have become great spiritualists, they start speaking all bullshit. बकवास करते हैं सब, बोलते हैं कि गणेश, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, शिवा सब एक हैं, कृष्ण है. सब अलग अलग एंगल से देखने का बस नजरिया है. बस कोई इस तरीके से देखता है तो गणेश जी दिखते हैं, इधर से देखेगा तो शिव देखेंगे, उधर से देखेगा तो दुर्गा दिखेंगी, उधर से देखेगा तो कृष्ण दिखेंगे. ये जिस देखने का नजरिया है, एक तत्व तो एक ही है. ये सब बोगस है, बोगस, महा बोगस थ्योरी. दिस इज नॉट गिवन इन द स्क्रिप्चर्स, नोवेयर. उपनिषद इज सेइंग ना तत्समचादिकस्य दृश्यते, कोई ना तो उनके बराबर है नारायण के, कृष्ण के, ना कोई उनसे बड़ा है. तो आप क्यों बराबर कर रहे हो ये सारे देवी देवताओं के कृष्ण से? कृष्णा खुद भगवद गीता में कितनी बार डांट दिए हैं कि अंतवंतु फलम तेसाम तद्भवति अल्पमेधसाम. जो देवताओं की वर्शिप करता है वो लेस इंटेलिजेंट वाला है, कम बुद्धि वाला है. मेरी भक्ति करो, यू वर्शिप मी, सरेंडर अनटू मी, एंड बाय वर्शिपिंग मी यू विल क्रॉस ओवर थ्री मोड्स. All these understanding Krishna has given. Krishna did not say by worshipping demigods you will cross over three modes. Never Krishna said. So three modes. This world is all about three modes. And अगर हमें खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें तीन गुणों के बाहर जाना है. As long as we are in the three modes, we will get different bodies. Always remember this. अगर हम if we are infected with three modes, we will get body.
So if you want to stop this cycle of birth and death, if we want to stop this business of punarapi janma, punarapi marana, then we must transcend ourselves beyond these three modes. And Krishna has said in 14th chapter how to transcend these three modes. Krishna says, Mam chayobhya vicharena bhakti yogena sevate sagunan samtite tan brahma bhuyaya kalpate. If somebody worships me, undeviated devotional service कोई अगर भगवान की करता है तो भगवान की कृपा से तीन गुणों से बियॉन्ड चला जाता है. कृष्णा बोल रहे हैं माम चयु अभ्य विचारिणी भक्ति मीन्स अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस अगर हम करेंगे तो हम तीन गुणों से बियॉन्ड चले जाएंगे और हम भगवान के धाम चले जाएंगे. सो भगवान की भक्ति करके हम तीन गुणों से बियॉन्ड जा सकते हैं. तो भगवान कैसे तीन गुणों में आ जाएंगे? ये मायावादी बोलता है कि अभी हम सब भगवान हैं, अभी तीन गुणों से प्रभावित हैं, जैसे ही तीन गुणों से फ्री हो जाएंगे हम भगवान बन जाएंगे. लेकिन भगवान अगर है तो तीन गुणों से प्रभावित क्यों हुए? पहला क्वेश्चन ये है मेरा. अगर हम भगवान हैं तो तीन गुणों से प्रभावित नहीं हो सकते. भगवान कृष्ण जो है भगवत गीता में बोल रहे हैं आई एम बियॉन्ड थ्री मोड्स. कृष्णा इज सेइंग आई एम बियॉन्ड थ्री मोड्स. So how if we are God, we are under three modes? So that means we are not God. But these Mayavadis nonsense, they say we are God, we are Narayan. What nonsense this? We are never gods. Krishna is God, we are servant of God. In 15th chapter we have discussed this very nicely. 15.7 you remember? Mam chayo abhya vicharena bhakti, sorry, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन. कृष्णा बोल रहे हैं सनातन हमेशा इटरनली सारे जीव कृष्ण के अंश हैं. कृष्णा ने नहीं बोला कि आप मेरी भक्ति करके जब तीन गुणों के बाहर जाओगे तो आप मेरे जैसे बराबर हो जाओगे. नहीं, कभी बराबर नहीं हो सकते. जीव जीव तत्व रहेगा, भगवान विष्णु तत्व ही रहेंगे. और शिव तत्व बीच में आते हैं, जीव तत्व के ऊपर, विष्णु तत्व के नीचे. शिव तत्व को समझना है तो हनुमान जी की लाइफ को स्टडी कर लीजिए, शिव तत्व समझ में आ जाएगा. कभी कभी हम बिविल्डर हो जाते हैं, ये लॉर्ड शिवा कौन है, क्या पोजीशन है शिवा एंड विष्णु में, बड़ा कॉन्फ्यूजन कॉन्ट्रडिक्शन होता है. शिवा इज none other than हनुमान. So you just study the life of Hanuman, you will understand what is relationship between Rama and Hanuman. Then you will understand what is relationship between Shiva and Krishna or Vishnu. As simple as that. So we have read, we have studied, we have seen Hanuman is a great devotee of Lord Rama. If you say Hanuman, you are Rama, Hanuman will beat your head with Gada and he will kill you. Hanuman can never tolerate if you glorify him like this. Oh Hanuman, you are Lord like Rama. He will kill you. Hanuman is not going to bless you by when you say this. No, Hanuman cannot tolerate. He's servant of Lord Rama. He is never Rama. But when we say Hanuman is Ram, that is most heinous act which we can do to Hanuman. So if Hanuman cannot be compared to Lord Rama, and Hanuman will never like it, similarly, how can Shiva be compared with Krishna? Never. Shiva is devotee of Krishna. And if we say Shiva, you are supreme, Shiva is most offended. Shiva doesn't feel good. Shiva Bhagavatam says, Vaishnavanam yatha Sambhu. वैष्णव में शंभु हैं. कृष्ण शिवा इज टॉप मोस्ट वैष्णव. और उनकी वाइफ जो दुर्गा है वो वैष्णवी बोला जाता है उनको, वैष्णो देवी, वो परम वैष्णवी हैं. सो कैसे इनको आप भगवान बना दिए, मुझे समझ में नहीं आता. ये हिंदू में पूरा खिचड़ी कर रखा. ये फर्जी के जो गुरु साधु महाराज बन गए हैं, इनके कारण हिंदू धर्म का पतन हो रहा है. हिंदू धर्म में बड़ा कंफ्यूजन मचा हुआ है शिवा विष्णु कृष्णा इन सबको लेकर. बट स्क्रिप्चर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है. इट इज जस्ट दैट वी हैव टू हियर फ्रॉम द राइट सोर्स, फ्रॉम परंपरा, फ्रॉम ऑथराइज्ड सोर्स, गुरु परंपरा प्रभुपाद से, आचार्यों से सुने तो हमें करेक्ट अंडरस्टैंडिंग मिलेगा. अदरवाइज ये जो बोगस महाराज साधु गुरु ये सब जो आजकल यूट्यूब पे छाए हुए हैं ना, ये सब पूरा बकवास कर रहे हैं. ये सब पूरा खिचड़ी बना दिए पूरा. दे हैव स्पॉइल्ड everything. So yeah, coming to the point, Krishna is beyond three modes, we are under three modes. So अगर हम three modes में भी हैं
कोई बात नहीं। तो सतोगुण में हमें रहना चाहिए। सतोगुण में रहेंगे तुम्हारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज आएगी, हम भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन अगर हम रजोगुण और तमोगुण में रहेंगे तो हमारे अंदर डिमोनियक क्वालिटीज रहेंगी। सो कृष्णा लिस्ट आउट करते हैं डिवाइन क्वालिटीज सारे वर्ण के बारे में, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के लिए। सो जो गृहस्थ है उसको क्या करना चाहिए, डिवाइन क्वालिटी जिसका क्या है, उसको चैरिटी देना चाहिए। डोनेशन देना इज मस्ट फॉर गृहस्थ, इसमें बताया गया है। दान, दान वर्ड यूज, दानम दमस्य यज्ञस्य, दानम दमस्य यज्ञ, दान मीन्स चैरिटी, दम मीन्स सेल्फ कंट्रोल एंड यज्ञ मीन्स सेक्रीफाइस। सो ये तीन क्वालिटी गृहस्थों के लिए है, गृहस्थ को फॉलो करना चाहिए। ब्रह्मचारी को क्या करना है, शास्त्र अध्ययन करना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना, सेलिबेसी। जो सन्यासी है उसको फियरलेसनेस रहना है, उसको डरना नहीं कभी कि अरे मेरे साथ क्या हो, क्योंकि सन्यासी अकेले रहता है, उसको कोई शेल्टर नहीं नथिंग, सो ही शुड नॉट फियर ऑल्सो। और उसका प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, उसका एक ही मात्र पर्पज है, प्यूरिफाइंग एग्जिस्टेंस। नो एसोसिएशन विद विमेन, सन्यासी शुड स्ट्रिक्टली नॉट एसोसिएट विद विमेन, देयरफॉर चैतन्य महाप्रभु वुड नेवर एसोसिएट विद विमेन। इवन चैतन्य महाप्रभु जो विमेन डिसाइपल थी वो दूर दर्शन करके चली जाती थी बस। चैतन्य महाप्रभु वुड नेवर मीट विद हिज सन्यासी, विद हिज विमेन डिसाइपल। Avoidance of wealth, so sannyasi should not deal with women and wealth. Cultivation of knowledge, and his only purpose is to cultivate knowledge. और जो वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ कौन होता है, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ आता है, गृहस्थ के बाद 50 साल में लोगों को वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। वानप्रस्थ में हस्बैंड एंड वाइफ उनको सारे जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, वृंदावन, मथुरा, धाम, धाम की परिक्रमा करनी चाहिए, धाम जाना चाहिए, और सारे जो घर के इंटेंगलमेंट है उससे फ्री हो जाना चाहिए। सारे जो फालतू के अटैचमेंट्स उसको ब्रेक करके हस्बैंड एंड वाइफ बोथ शुड विजिट ऑल दी होली प्लेसेस। देन सन्यास में हस्बैंड को पूरी तरीके से, इवन वाइफ को भी छोड़ के सन्यास ले लेना चाहिए। वाइफ शुड रिमेन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ग्रोन अप चाइल्ड, एंड हस्बैंड शुड लीव होम एंड टेक सन्यास। सो ये सारी, और वानप्रस्थ की जो क्वालिटी हो ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी करनी चाहिए। सो ये सारी क्वालिटीज हैं जो 4 वर्णों के लिए है, सॉरी ये 4 आश्रमों के लिए है। 4 वर्णों के लिए भी हम पढ़ेंगे। 4 वर्ण कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सो ब्राह्मणों की क्या क्वालिटीज बता रहे हैं कृष्ण, सिंपल होना चाहिए, शुड बी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ब्राह्मण वही है जो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो घुमाता नहीं है, डुअलिटी नहीं है उसके अंदर, वो हिपोक्रेट नहीं है, घुमाता नहीं है। आजकल सब घुमाने लग गए, सब हिपोक्रेट हो गए, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, अपने उनको लगता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन ये डिमोनियक क्वालिटी है, डिवाइन क्वालिटी नहीं है। जो डिमोनियक क्वालिटी में होता है वो नरक में जरूर जाएगा। तो ब्राह्मण मतलब सिंपल होना चाहिए, नॉन वायलेंट होना चाहिए, नॉट अरेस्टिंग द प्रोग्रेसिव लाइफ ऑफ एनी लिविंग एंटिटी। सो नॉन वायलेंट मतलब क्या होता है कि किसी भी लिविंग एंटिटी की प्रोग्रेसिव ग्रोथ जो है उसको हार्म नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड नॉन वायलेंस। We should never hurt, we should never kill animals, we should never hurt others feeling also. Hurting others feelings also called violence. 13 चैप्टर में याद करो हमने पढ़ा था अमानितम, अधम भित्वम, अहिंसा, शांति, राजम। सो अहिंसा, नॉन वायलेंस। सो व्हाट इज नॉन वायलेंस, हमें जो हमने पढ़ा वो तो है ही, बट फाइनल अंडरस्टैंडिंग नॉन वायलेंस की कि हर्टिंग अदर्स फीलिंग इज आल्सो नॉन वायलेंस। सो वी शुड बी नॉन वायलेंट। ट्रुथफुल होना चाहिए ब्राह्मण को, कंट्रोल एंगर, गुस्सा नहीं करना चाहिए ब्राह्मण को। डिटर्मिनेशन होना चाहिए, चैंटिंग का डिटर्मिनेशन ले लिया, क्लास अटेंड करने का डिटर्मिनेशन ले लिया, कुछ चीज का डिटर्मिनेशन ले लिया तो उसको करना चाहिए, ऐसा नहीं कि शेक हो गए हम। और मॉडेस्टी होनी चाहिए ब्राह्मण के पास, और वो अबॉमिनेबल एक्ट नहीं करना चाहिए। सो ये सारी क्वालिटी ब्राह्मणों की। क्षत्रियों की क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग एंड एबल टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, not showing anger to those who are inferior or treat one with contempt, keeps the body strong even when tired. So ये सारी क्वालिटीज है डिवाइन क्वालिटी क्षत्रियों की। वैश्यास की क्या क्वालिटी है, क्लीन इन माइंड, बॉडी एंड डीलिंग्स, नॉन वायलेंट। शूद्रास नॉट एक्सपेक्टिंग ऑनर, ये शूद्र की क्वालिटी। सो ये सारे क्वालिटी 4 वर्णों के, 4 आश्रमों के कृष्णा ने यहाँ पर लिस्ट आउट की है।
अब ये बता रहे हैं जो डिमोनियक लोग हैं। डिमोनियक क्वालिटीज क्या है? प्राइड, एरोगेंस, कॉन्सीट, एंगर, हार्शनेस एंड इग्नोरेंस। These qualities belong to those demoniac nature. So डिवाइन क्वालिटी बताया कृष्णा ने, डिमोनियक क्वालिटीज। अब कृष्णा बोल रहे हैं कि अर्जुन लेकिन तुम क्या हो? डिवाइन क्वालिटीज। फिर कृष्णा बोल रहे हैं कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक डिमोनियक और एक डिवाइन। सो डिमोनियक लोग कौन है? यहाँ देखो डिमोनियक लोग, those who are demoniac do not know what is to be done and what is not to be done. Neither cleanliness nor proper behavior nor truth is found in them. So they are unclean. अगर कोई unclean है, कॉलेज के स्टूडेंट्स जनरली unclean रहते हैं, पूरा एकदम डर्टी, रूम साफ नहीं करते, एकदम गंदे रहते हैं, ठंडी में नहाते नहीं। So they are demoniac. Not having proper behavior. Proper behavior means कि not responding to superiors, है ना, उनको रिस्पेक्ट नहीं करना, और रेवरेंस नहीं होना, कोई ग्रैटिट्यूड नहीं होना, कोई ग्रेटफुलनेस नहीं होना, ये सब डिमोनियक क्वालिटीज। और वो बोलते हैं कि डिमोनियक लोग बोलते हैं अरे ये दुनिया सब मोह फालतू की है, ये असत्यम है, ये असत्यम प्रतिष्ठम थी जगद आहुरनीश्वरम अपरस्परम संभूतम किम किन अन्यत काम है तुकम। तो बोलते हैं ये दुनिया जो असत्य है, ये मिथ्या है, फॉल्स है, जैसे कि फ्लावर्स इन द स्काई, फैंटस्मेगोरिया बोलते हैं जिसको। सो बोलते हैं ये दुनिया कोई फाउंडेशन नहीं है, दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट, जस्ट एंजॉय, दिस वर्ल्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सेक्स। वो बोलते हैं जगत आहुर अनिस्किम अन्यत काम है तुकम, ये दुनिया बनी है सेक्स से और सेक्स के लिए बनी है, किम अन्यत काम है तुकम, केवल काम के लिए बनी है दुनिया और कोई यहाँ का कोई बिजनेस नहीं है, जो है डिमोनियक लोग बोलते हैं। इसलिए देखेंगे आप डिमोनियक लोग कुछ और नहीं करते, केवल यही करते, लस्ट में एंगेज रहेंगे, लस्ट 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 एंड दे गेट रस्टेड, लस्ट बाय लस्ट दे गेट रस्टेड एंड दे गो टू हेल। सो ये उनका कंक्लूजन है कि ये दुनिया जो है असत्य है, ये ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है, ये लस्ट से बना है। तो ये ऐसा कंक्लूजन उनके माइंड में होता है। तो आगे क्या सोचते हैं? हु आर लॉस्ट टू देमसेल्फ एंड हु हैव नो इंटेलिजेंस एंगेज इन अनबेनिफिशियल हॉरिबल वर्क्स मेंट टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। सो जो इस तरीके से लस्ट से पूरा इन्फ्लुएंस्ड है, तो ऐसा कार्य करता है जो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करता है, उग्र कर्म करता है। तो ये जो फैक्ट्रीज है बड़े बड़े, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उग्र कर्म है। तो डिमोनियक क्वालिटीज है, ये जो हॉरिबल वर्क्स हो रहे हैं ना, ये दिस इज अनबेनिफिशियल फॉर द वर्ल्ड। इवन यू नो स्टीफन हॉकिंग सेज इन नेक्स्ट 100 years दिस होल वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड। ये स्टीफन हॉकिंग से स्टेटमेंट है। he says that in the next 100 years the whole world will be finished and who will be the cause? This scientific advancement जो हमें advancement कर रहे हैं ना, this only will be the cause of destruction. So ये तो कृष्णा यहाँ बोल दिए हैं already। ये horrible works हैं, this is meant to destroy the world. और they try to enjoy this material world, who? Demoniac people, to the utmost limit, fullest extent तो तक enjoy करना चाहते हैं, and therefore always engage in inventing something for sense gratification. कुछ नया इन्वेंट करते रहेंगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुछ नया करेंगे, जैसे कॉलेज में होता है टीचर्स डे के दिन, या जो हम लोग नाच एनुअल फेस्ट करते हैं या टेक्निकल फेस्ट करते हैं, नाम अलग अलग देते हैं, टेक्निकल फेस्ट, एनुअल फेस्ट, क्षितिज, स्प्रिंग फेस्ट, ऑल दिस थिंग्स, रैपर अलग अलग है, बट एक्टिविटी होता क्या उसमें, जो यहाँ कृष्णा बता रहे हैं, देखो, इन्वेंटिंग न्यू न्यू थिंग्स बट ओनली फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, केवल इंद्रिय तृप्ति होती है बस। ओल्ड वाइन न्यू बॉटल, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, दैट्स ऑल। बॉटल they are changing, wine is the same. Such materialistic inventions are considered to be advancement of human civilization, but the result is, तो उसमें लाइटिंग इफेक्ट होगा, ये होगा, शान को बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे, एक्टर को बुलाएंगे, एक्ट्रेस को बुलाएंगे, अलग अलग, और स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, ओ आ रहे हैं, अल्टीमेटली कर क्या रहे हैं उसमें? वही घुमा फिरा के सेक्स मींस सेंस ग्रेटिफिकेशन।
अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, दैट्स ऑल, यहाँ पर वही लिखा जा रहा है। इससे होता क्या है? सच मटेरियलिस्टिक इन्वेंशंस आर कंसिडर्ड टू बी एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, बट द रिजल्ट इज दैट पीपल ग्रो मोर एंड मोर वायलेंट एंड मोर क्रूएल। इससे वायलेंस बढ़ रहा है, लोग क्रूएल हो रहे हैं, पीपल आर बिकमिंग सेल्फ सेंटर्ड। In the name of enjoyment, they are killing animals. They are cruel to animals, cruel to other human being. Today, you see, where are feelings? No feeling today. Divorce इतने हो रहे हैं, cheating इतना हो रहा है. They don't have feeling. Human behavior नहीं है. Human feelings lost हो रही है because of demoniac nature. They have no idea how to behave towards one another. कोई आइडिया ही नहीं है कैसे बिहेव करना है, बिकॉज सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। कुत्ता पालेंगे और मांस खाएंगे। क्या हिपोक्रेसी, क्या गजब की हिपोक्रेसी है। जस्ट इमेजिन, कुत्ता पाल रहे हैं, ओ कुत्ता पालना है, आई एम पेट लवर, और जाके वहां पर बड़े बड़े होटल्स में जाके वो नॉनवेज खा रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? दिस इज हिपोक्रेसी। सो दीज पीपल विल गो टू हेल। डुप्लिसिट पीपल, हिपोक्रेट्स। केएफसी में, बड़े बड़े होटल्स में केएफसी, उसमें जा रहे हैं, खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? नॉनवेज। और स्टेटस से क्या लगा रहे हैं? कुत्ता पाल रहे हैं, आई एम पेट लवर। नॉनसेंस। इसको डिमोनियक क्वालिटी बोला गया। टेकिंग शेल्टर ऑफ insatiable lust and absorbed in the conceit of pride and false prestige, the demoniac, thus illusioned, are always sown to unclean work, attracted by impermanent. Their activities are always lusty, and their lust is insatiable, never satisfied. So if lust is not satisfied, then anger comes. So anger means destroying the world. So here Prabhupada explains the difference between love and lust. Prabhupada says that business is going on under the name of love. A man and woman, if you got pocket filled up with money, I love you. If you have got beauty, then I love you. That is not love, that is lust. They do not know what is love. So Prabhupada यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं ये सो कॉल्ड, जो बोलते हैं ना, आई लव एनिमल्स, आई लव दिस, आई लव दैट, आई लव नेशन। सो ये सब लव नहीं है, ये सब बिजनेस चल रहा है। लव मीन्स विदाउट एनी expectation, without any return. When you love somebody, it's like mother loves her child without any expectation. So like devotees, they serve Krishna without any expectation. That is love. So love means when we love Krishna, that is love. कृष्णेर इंद्रिया प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हम कृष्ण की इंद्रियों के लिए काम करते हैं, when we work to satisfy the senses of Krishna, that is called love. And if we work to satisfy our senses, that is called lust. If you are doing any activity which is self-centered, that is lust, that is not love. The demoniac believe that to gratify the senses unto the end of life is the prime necessity of human civilization. Thus there is no end to their anxiety. प्रभुपाद कृष्णा बोल रहे हैं कि डिमोनियक पर्सन का जो प्राइम नेसेसिटी क्या है? टू ग्रेटिफाई द सेंसेस, और इंद्रिय तृप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य है, इसलिए हमेशा एंजाइटी में रहते हैं। एंड बीइंग बाउंडेड बाय hundreds and thousands of desires, by lust and anger, they secure money by illegal means for sense gratification. So जब आदमी इंद्रिय भोग के ट्रैप में फंस जाता है तो सारे गलत काम करने स्टार्ट कर देता है, और उसको तनिक भी ये डर नहीं लगता कि यार मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ, गलत कार्य करके मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरा क्या होगा। वो भूल जाता है, वो इतना मोह माया में और डिमोनियक क्वालिटीज में फंस जाता है।
और इलीगल एक्टिविटी करने लगता है। टिपिकल एग्जाम्पल कम्स ऑफ अजामिल। अजामिल एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया था, बहुत अच्छा नारायण का भक्त था, लेकिन प्रोस्टिट्यूट से अट्रैक्ट होके उसे शादी कर लिया, अपनी खुद की वाइफ को भगा दिया, अपने माँ बाप को भगा दिए घर से, और सारे गलत काम करने लग गया। He started securing money by illegal means, indulge into all sinful activities, looting the people, this, that. So this happens when we are influenced by lust. सब अजामिल की लाइफ में लस्ट से स्टार्ट हुआ था। सो हमें लस्ट से बचना है और लव डेवलप करना है, लव फॉर कृष्णा। डिमोनिक पर्सन हु हैज नो फेथ। अच्छा, डिमोनिक पर्सन जो है ना, वो किसी का नहीं होता, किसी का नहीं होगा। वो आपको एक्सपोज करेगा, आई एम फॉर यू, अब मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने उसके अंदर देखा, ये सारी क्वालिटीज देख रहे हो आप, फिर भी आप ट्रस्ट कर रहे हो, देन आप फूल नंबर 1 हो। क्योंकि डिमोनिक पर्सन खुद के लिए करता है, उसका कोई नहीं है यहाँ पर, नोबडी इज हिज। His only goal is to satisfy his senses. अगर उसकी इंद्र तृप्ति में आप हेल्प करोगे तो आप दोस्तों, अगर आप उसकी इंद्र तृप्ति में बाधा बन रहे हो तो आपको खत्म कर देगा। So कभी भी डिमोनियक पर्सन पे फेथ नहीं करना। एंड आज 99% पीपल आर डिमोनियक। ये आप चैप्टर पढ़ के मिला लो, क्वालिटीज देख लो आपके आसपास, हम खुद, हमारे अंदर कितनी डिवाइन क्वालिटीज, कितनी डिमोनियक, मिला लो। ये चैप्टर में सब बता रहे हैं भगवान, सारी क्वालिटीज मैनिफेस्ट यहाँ दिखा रहे हैं, शो कर दिखा रहे हैं कृष्ण। We can check our qualities whether we are divine or demoniac. So यहाँ कृष्णा बोल रहे हैं कि he performs all kinds of sinful activities simply for sense gratification. He does not know that there is a witness sitting within the heart. वो ये भूल जाता है कि भगवान परमात्मा के रूप में सब देख रहे हैं। जैसे एनालॉजी आता है उपनिषद में कि एक पेड़ पे 2 चिड़िया बैठी है, एक चिड़िया जो है परमात्मा है और एक आत्मा है। आत्मा जो है वो अलग अलग एक्टिविटी में इंडल्ज है और उससे जो रिजल्ट आता है बिटर और स्वीट, उसमें उसको टेस्ट कर रहा है, और परमात्मा जस्ट विटनेस कर रही है। परमात्मा ये देख रही है कि ये जो चिड़िया है ये इंगेज्ड है एक्टिविटीज में, अलग अलग एक्टिविटीज में, और एक्टिविटीज के रिजल्ट 2 ही है, या बिटर या स्वीट। और स्वीट है तो एंजॉय कर रहा, बिटर है तो सफर कर रहा। But Paramatma knows this bird which is indulged into different activities, no matter what kind of activity it does, this bird will never be satisfied unless this bird turns its face towards me. जब ये दूसरी चिड़िया, ये परमात्मा जो एक चिड़िया है, इसकी तरफ मुंह नहीं करेगी तब तक खुश नहीं हो सकती। So only way to become happy for the second bird is turn its face towards Krishna, then only it can be happy. Otherwise that bird can never be happy. But unfortunately this Atma, which is compared to second bird, it is not turning its face towards Paramatma. Atma is indulged into all kinds of sense gratification, not caring for the Lord, so therefore always disturbed. So we should always remember we are always witnessed by Paramatma. यहाँ पर बहुत अच्छा एक लाइन है, पनिशमेंट ऑफ लस्ट टॉर्मेंटेड एंड डोमिनेटेड इंडिविजुअल्स। सो अगर हम लस्ट से डोमिनेटेड हैं सो विल बी पनिश्ड। सो लस्ट टॉर्मेंटेड हैं तो हमारा प्यूरिफिकेशन होगा। लस्ट ने इतना टॉर्मेंट कर दिया है कि हम इनसे एकदम त्रस्त हो गए कि यार इनफ, नो इनफ इज इनफ। सो देन यू सीक फॉर हायर थिंग्स, you seek something beyond lust. So lust tormented is desirable, lust dominated is not desirable. So we should not be lust dominated, so lust tormented. Lust tormented means we suffered so much, now we have realized अरे यार कुछ नहीं है, बहुत परेशानी है। Then Krishna says, thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusion, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. So इतना अटैच हो जाते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन से कि मोह जाल में फंस जाते हैं। इसलिए इसमें कृष्णा बोल रहे हैं
अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, मोह के जाल में पूरा फंस जाते हैं। और प्रसक्ता काम भोगेशु, काम भोग से इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं कि पतंती नरकेशु चौ, नरक में हमारा पतन हो जाता है। फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पर। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स क्यों बोला गया है फॉलो करने के लिए? क्योंकि ये चारों हम ब्रेक करेंगे तो इसके अलग अलग नर्क बने हुए हैं। ड्रिंकिंग करेंगे तो उसका एक नर्क है, वहां पर आपको ड्रिंकिंग फोर्सफुली पिलाया जाएगा, मॉल्टेन आयरन को आपको पिलाया जाएगा, मॉल्टेन आयरन। इलिसिट अफेयर्स में इंडल्ज है, जो पूरा एकदम सिंफुल एक्टिविटी कर रहा है, यू विल बी फोर्स्ड इन द हेल टू हैव इंटरकोर्स विद फायर opposite sex made of fire, and you will be forced by the attendants in the hell. And if somebody is indulged into gambling, he will be punished very miserably in the hell. And if somebody is indulged into meat eating वालों का तो भयंकर हाल होता। They will be boiled in the boiling oil. These are not mythology. ये कृष्ण बोल रहे हैं, भागवत में आता है। There are 27 kinds of hell. How many? 27. For all the sinful activities, there are different hell. तभी तो सुखदेव गोस्वामी जब ये हेल के बारे में बताते हैं तो परीक्षित महाराज डर जाते हैं, बोलते हैं ये कलयुग के जीव का क्या होगा? ये कलयुग के जीव तो सारे नरक में जाएंगे। तब वहां पर जाके सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कहानी सुनाई थी कि ऐसे ही एक कान्याकुब्ज, कन्नौज का एक ब्राह्मण था, कानपुर को कन्नौज कहा जाता था। कान्याकुब्ज ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। कान्याकुब्ज द्विज कशिद, अजामिल उसका नाम था, अजामिल नाम। वो बहुत अच्छा भक्त था, बट बाद में वो इतने सारे पाप किया, लेकिन क्योंकि उसने नाम जप कर लिया मरते समय, नारायण, so he was saved from all the hellish planet. विष्णु दूत came to take him. तो यहाँ पर आपको मोटिवेशन मिलेगा पाप करने का, राइट? हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छा है, नाम जप करो और सारे पाप करो, नरक नहीं जाने को मिलेगा। नहीं, ये अब बहुत बड़ा अपराध है, committing sinful activity on the strength of the holy name of the Lord. That is the 7th offense, to commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. There are 10 offenses towards chanting the holy name of the Lord. 7th offense, to commit sinful activities on the strength of the holy name of the Lord. And ये लीला इसलिए सुनाई गई है कि हम भगवान का नाम एक बार जप करने से नरक जाने से बच सकते हैं। तो अगर हम रेगुलर चैंटिंग करें भगवान का, तो क्या हमारे साथ हो सकता है? What we can achieve, we cannot imagine. So ये जामिल का पास टाइम सुना के सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि बहुत सुंदर वर्ष आता है एक, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो। अम्बरीश महाराज जी बोलते हैं यही, और सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं सकृद मनः कृष्ण। हाँ, अम्बरीश महाराज बोलते हैं सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, और अजामिल उपाख्यान में जब अजामिल की कहानी सुना दिया तो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं सकृद मनः कृष्ण पदारविंदयो। सकृद मतलब इवन वंस, एक बार भी अगर कोई भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना मन लगा दिया, सकृद मनः कृष्ण पदारविंदयो, अगर भगवान कृष्ण के चरणों में कोई एक बार भी सोच लिया भगवान का चरण कमल कितना सुंदर है, बस he will never go to hell. भागवतम का वर्डिक्ट है। सो पूरा भागवतम अगर आप पढ़ेंगे ना, तो भागवतम इज बियॉन्ड 3 मोड्स। भागवतम इज ट्रांसेंडेंटल। जैसे हम जानते हैं कि सारे पुराणों को, उपनिषदों को 3 मोड्स में डिवाइड किया गया है,
लेकिन जो भागवतम है वो 3 मोड में नहीं है, वो ट्रांसेंडेंटल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम उदम। सो भागवतम इज बियॉन्ड 3 मोड्स। जैसे कृष्णा 3 गुणों के परे हैं, वैसे भागवतम 3 गुणों के परे है। इसलिए भागवतम केवल ऐसी चीज बता रहा है जिससे कि हम इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से फ्री होके भगवान के धाम जा सकते। सो अलग अलग पास टाइम, अजामिल का पास टाइम सुना के ये बताना चाह रहे हैं कि केवल भगवान कृष्ण के नाम का जप करने से हम नरक जाने से बच जाएंगे। इवन भगवान शिव भी बोलते हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु यत्र न संशयः। लॉर्ड शिवा इज सेइंग दैट मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम, सारे जीवों को मुक्ति केवल एक व्यक्ति प्रदान कर सकता है। कौन है? विष्णु। यत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। ओनली लॉर्ड विष्णु और कृष्णा कैन गिव अस मुक्ति, नोबडी एल्स। लॉर्ड शिवा कैन गिव अस इम्पर्सनल लिबरेशन। जैसे कि मैंने बताया 5 मुक्ति है, लॉर्ड शिवा से आपको केवल इम्पर्सनल मुक्ति मिल सकती है। जो 4 पर्सनल लिबरेशन है, भगवान के धाम जाते हैं जिसमें हम, वो लॉर्ड शिवा नहीं दे सकते हमें। सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य, साष्टी एंड 5वां इम्पर्सनल है। सो सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, साष्टी, ये चारों लिबरेशन ओनली लॉर्ड कृष्णा कैन बेस्टो एंड नोबडी एल्स। एंड इम्पर्सनल लिबरेशन ये शिवा एंड ये ब्लेस कर सकते हैं बस। So therefore we should chant the holy name of the Lord if you want to become free from these habits, bad habits, and we want to go back to Krishna. Otherwise we'll go to hell for sure. Then 13 to 15th verse जो बहुत ही अच्छा वर्स है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये ट्रांसलेशन आप लोग पढ़ते रहना। इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। क्या बोल रहे हैं भगवान? द डिमोनिक पर्सन थिंक्स सो मच वेल्थ डू आई हैव टुडे एंड आई विल गेन मोर अकॉर्डिंग टू माय स्कीम। सो डिमोनिक पर्सन स्कीम बनाता है, इतना धन आज मैंने कमा लिया है, ये करूंगा तो और धन कमा लूंगा। सो मच इज माइन नाउ, अस्तिदम इति में, ये इतना मेरा है, इट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। भविष्यति पुनर्धनम, भविष्य में और बढ़ेगा। असौ मया हतः शत्रुर, ये मेरा दुश्मन है। असौ मया हतः शत्रुर, ये मेरा दुश्मन है, इसका मैंने वध कर दिया। आई हैव किल्ड हिम, माय अदर एनिमीज विल आल्सो बी किल्ड। देखो क्या मेंटालिटी डिमोनिक। हम लोग भी ऐसे सोचते हैं ना, कहीं ना कहीं हमारा भी मेंटालिटी मैच करता है। इफ नॉट ऑल द इंस्ट्रक्शंस, ऑल द स्टेटमेंट, 1-2 लाइन 3 लाइन से तुम्हारा मेंटालिटी मैच करता ही। I am the Lord of everything. I am the enjoyer. I am perfect, powerful, and happy. I am the richest man surrounded by aristocratic relatives. There is none so powerful and happy as I am. I shall perform sacrifices. I shall give some charity, and thus I shall rejoice. In this way, such persons are deluded by ignorance. Krishna is saying. दास्यामि मोदिस्य इति अज्ञान विमोहिता। वो अज्ञान से पूरा विमोहित है, डिल्यूडेड है। ये डिमोनियक पर्सन की ये क्वालिटी है, क्योंकि वो लस्ट से पूरा टॉर्मेंटेड है, लस्टी है क्योंकि। एंड ही सेज गॉड इज डेड एंड आई एम गॉड। इस तरीके की उसकी मेंटालिटी होती है। दिस इज माइन, टुमारो आई विल हैव मोर, ही इज माय एनिमी, आई हैव किल्ड हिम। सो लाइक दिस, दीज आर द मेंटालिटी। लस्ट, wrath, प्राइड, ग्रीड से इन्फ्लुएंस्ड रहता है। एनवियसनेस, ग्लूटनी, ग्रीड, ये सारे उसके नेचर होते हैं। बाहर से तो बड़ा अच्छा दिखेगा, अंदर ये उसका मुंह है, देख लो अंदर का जो पर्सनालिटी उसका ऐसे दिखता है, ये डिमोनियक पर्सन। फुल ऑफ लस्ट, फुल ऑफ डिमोनियक क्वालिटीज, अंदर से ऐसा है, खा जाए पूरा। बाहर से अच्छा फेस करके, हाँ हाँ मैं तो आपका हूँ, बहुत अच्छा, ऐसे। और उसके इतने सारे मटेरियल डिजायर्स होते हैं, वो नेटवर्क में फंस जाता है। ही इज कॉट अप इन नेटवर्क ऑफ इल्यूजन and strongly attached to sense enjoyment.
इससे क्या होता है, दे ग्लाइड डाउन टू द हेल, वो नरक में चला जाता है। कृष्णा बोलते हैं फिर, those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, I perpetually cast into the ocean of material existence, into various demonic species of life. कृष्णा क्या बोल रहे हैं, those who are envious and mischievous, who are the lowest among men, जो नरादम है, तान हम दिशतः क्रूरा संसारेषु नरादमाम क्षिपाम यजश्रम शुभम आसुरेश एव योनिषु। उसको जो असुर प्रवृत्ति वाला है उसको मैं डिमोनियक स्पीसीज में डाल देता हूँ perpetually, and he suffers in the ocean of material existence, life after life, and इस तरीके से रिपीटेड बर्थ एंड डेथ के साइकिल में फंसा रहता है और डिमोनिक स्पीसीज में जन्म लेता है। ओ सन ऑफ कुंती, सच पर्सन्स कैन नेवर अप्रोच मी। कृष्णा बोल रहे हैं कि आसुरीम योनिम आपन्न मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, जन्म आफ्टर जन्म, जन्मनी जन्मनी, जन्म के बाद एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में वो आसुरीम योनिम, आसुरी योनि में जन्म लेगा वो, और माम प्राप्य वो कौनते, मुझे कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो यान्ति अधमाम गतिम, और अधम बनता जाएगा, सिंक डाउन टू द मोस्ट अबॉमिनेबल टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस। तो क्या उसका सिचुएशन हो रहा है, देखो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, जो डिमोनियक है। फिर कृष्णा बोल रहे हैं, 3 gates to hell, lust, anger, greed. These are 3 gates to hell, lust, anger, greed. ग्रीड का देखो, जिसको उसकी जीभ कितनी निकली हुई है, 10 किलोमीटर की तो उसकी जीभ है, इतना ग्रीडी है। और एंग्री देखो, उसके कान से धुआं निकल रहा है। और लस्ट, एंगर, ग्रीड, लस्टी आदमी कितना लस्टी है। तो ये 3 गेट्स हैं हेल के। कृष्णा बोल रहे हैं, श्लोक क्या है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन काम क्रोध तथा लोभ। काम क्रोध तथा लोभ, ये त्रिविधम नरकस्येदम, ये 3 गेट्स हैं हेल के। अगर ये हमारे अंदर है तो ये प्रभुपाद लिखते हैं, दीज आर रॉयल रोड्स टू हेल, ये रॉयल रोड है नरक में ले जाने के लिए आपको। क्या क्या, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मन, हमारा नाश कर देते हैं, काम क्रोध तथा लोभ। इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं, तस्मात एतम त्रयम त्रयम त्यजेत, इसलिए इन तीनों को गिव अप करो अर्जुन। अर्जुन तो नहीं है, हम एक बोल रहे हैं कृष्णा, अर्जुन को ऑलरेडी बोल दिया, याद करो 5th वर्स में, अर्जुन यू हैव डिवाइन, यू आर इन डिवाइन क्वालिटी, यू आर नॉट डिमोनियक, यू आर डिवाइन। तो इसके लिए बोल रहे हैं, हमारे लिए बोल रहे हैं, तस्मात एतत् त्रयम त्यजेत, इसलिए इसको छोड़ दो, अदरवाइज नरक जा रहे हो, और भगवान की भक्ति में लग जाओ, नहीं तो नरक जाएंगे सीधा। भगवान की भक्ति करेंगे तो वैकुंठ जाएंगे हम सीधा। फिर कृष्णा बोल रहे हैं, ग्रेजुअल एलिवेशन के बारे में, हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए। यह शास्त्र विधि उत्सृज्या वर्तते कामकारतः, न सिद्धिम अवापनोति न सुखम न पराम गतिम। इसमें कृष्णा बोल रहे हैं, जो शास्त्र की जो विधियां दी गई हैं उसको अगर हम उत्सृज्या, गिव अप कर दिए और अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, यह शास्त्र विधि उत्सृज्या मतलब गिव अप कर दी, और वर्तते काम करता, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, जो कि आजकल लोग कर रहे हैं। सो उनके लिए कृष्णा क्या बोल रहे हैं, न सिद्धि अवापनोति, कभी सिद्धि नहीं मिलेगी, कोई सिद्धि नहीं मिलेगी, न सुखम, न तो सुख मिलेगा, न पराम गतिम, न तो सुप्रीम डेस्टिनेशन मिलेगी। जो अपने मन से कुछ भी करते हैं, दो जो है abolished scriptures and doing their whimsical activities, they will never get any siddhi, never get any perfection, they'll be never happy, और उनको कोई डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा, नरक जाएंगे। सो इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि तस्मात, इसलिए शास्त्र प्रणाम प्रमाणम, इसलिए हमें शास्त्र के प्रमाण को फॉलो करना चाहिए, और शास्त्र को फॉलो करके हमें अपनी ड्यूटी समझ के उसको करना चाहिए, और जो प्रोहिबिटेड बिहेवियर है उसको छोड़ के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। If however one is able to
be guided by proper and bona fide spiritual master who can lead one to the path of elevation to the highest stage, then one's life becomes successful. So यहाँ पर बहुत important है एक bona fide spiritual master को follow करना, otherwise our destination is very, very dangerous. So with this, we have finished successfully the 16th chapter, which explains divine and demoniac nature. So Krishna concludes by saying, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि. शास्त्र के नियमों को जो स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, उसके द्वारा जो बताया गया इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, सो हम हाईएस्ट परफेक्शन अचीव करेंगे और भगवान के धाम चले जाएंगे. अदरवाइज अगर हम शास्त्रों को गिव अप कर रहे हैं तो हमें न तो सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा, न तो पराम गति मिलेगी. नरक जाएंगे और सफर करेंगे. कृष्णा 19th वर्ष में बोले, तान हम दिशता कुरूरा संसारेषु नराधमा क्षिपामि यजश्रम शुभम आसुरेषु एव योनिषु. आसुरी योनि में जन्म लेगा, जन्म आफ्टर जन्म असुर बनता रहेगा और नरक में ही सड़ता रहेगा. कोई उसकी होप नहीं है. सो इस तरीके से 16 चैप्टर कृष्णा ने पूरा डिवाइड कर दिया डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर को. तो हम लोग देख सकते हैं हमारा नेचर किस में बैठ रहा है, डिवाइन या डिमोनियक. अगर हम डिवाइन में हैं तो अच्छा है, डिमोनियक में तो हमें डिवाइन बनना है बाय इंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस, बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि कृष्णा ने कंक्लूड किया. ओके, सो विद दिस वी विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. हरे शिला प्रभुपाद की जय. हाँ पीयूष. हरे कृष्णा प्रभु. हरे कृष्णा. एक क्वेश्चन था, इसे पूछ रहा था प्रभु कि आज के कलयुग में जैसे ये जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास को ये तो फॉलो करना बहुत मुश्किल है, तो फिर आज अभी के समय में लोग क्या करेंगे? अभी केवल भक्ति करना है, गुरु के आश्रय लेकर जो गुरु बताए उसको करते रहना बस. प्रभुपाद का आश्रय लेकर प्रभुपाद ने जो बोला है 4 नियमों का पालन करें, भक्ति करें और भगवान के धाम जाएं. और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये आज के कलयुग में सब डिस्टर्ब, टॉपसी टर्बिड है, कोई अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है. सो इसलिए प्रभुपाद ने हमें सिस्टम दिया है बहुत ही अच्छा कि स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, कहाँ भी, कहीं भी हो, कहाँ भी हो, जहाँ भी हो, आप बस भगवान के बारे में सुनते रहो, नाम जप करते रहो, भगवान के धाम चले जाओगे, है ना. तो ये हमें फॉलो करना है. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय.